In this video we are going to see the new type of integral, which is of the type integral I is equal to integration of a into sin x plus b into cos x divided by c into sin x plus d into cos x with respect to x. So here a, b, c, d are any real numbers. A, b, c, d are any real numbers, or if your integral is of the type a into e raised to x plus b divided by c into e raised to x plus d. Here also a, b, c, d are any real numbers, where a, b, c, d belongs to the set of all real numbers. Okay, in that case write the numerator as a into denominator. Dr stands for denominator, so write numerator as a into denominator plus b into derivative of denominator. Write the numerator as a into denominator plus b into derivative of denominator. Next step is find the values of a and b. By equating both sides, we have to find the values of a and b. Substitute this value of numerator. So substitute at the place of numerator. ये हम किसका वैल्यू निकाले? न्यूमरेटर का वैल्यू. We are replacing this numerator by this term. Substitute at the place of numerator in integral I. Split the numerator and then integrate. Split the numerator and then integrate. Your answer is of the form. आंसर का देखो फॉर्म क्या आना चाहिए. आंसर का फॉर्म आएगा आपका जो भी आपका a का वैल्यू रहेगा a इंटू एक्स प्लस बी इंटू लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी. a into x plus b into log of denominator plus c. Okay, now using this method we are going to start with the first problem. Okay, now check here. So integral I is equal to, this is your first problem, integral I is equal to sin x plus 2 cos x cos x divided by 3 sin x plus 4 cos x. So here if you see sin cos देखो sin cos के टर्म में a b c d 1 2 3 4 a b c d are 1 2 3 4. Okay, so it is of this type. ये जो प्रॉब्लम है ये इसी टाइप का प्रॉब्लम है. So what is the first step over here? यहाँ पे देखो first step क्या लिखा है. Then write the numerator as. So let I am starting with the solution. So let the numerator क्या है यहाँ पे sin x plus 2 into cos x. It is equal to a into denominator. a into denominator. So denominator क्या हो गया 3 sin x plus 4 cos x plus b into derivative of denominator. So it is d by dx of denominator 3 sin x plus 4 cos x. तो हमने ये न्यूमरेटर को इस फॉर्म में लिख दिया a into denominator plus b into derivative of denominator. So it is equal to what? Sin x plus 2 cos x, left hand side as it is, a into, so it is a into 3 into sin x plus 4 into cos x plus b into derivative of 3 sin x, 3 scalar as it is, sin x का derivative cos x plus 4 as it is, cos x का derivative क्या हो जाता है minus sin x, so it is minus 4 sin x. So if you simplify the RHS, it is 3a sin x plus 4a cos x, middle sign plus 3b cos x minus 4b sin x. And what is left hand side? Left hand side is as it is, sin x plus 2 into cos x. जो यहाँ पे वैसे के वैसे हमने यहाँ पे रिपीट कर दिया. What is the next step? So sin x plus 2 into cos x. On right hand side also we will take the terms with sin x and cos x together. तो यहाँ पे देखो sin x के टर्म कौन कौन से हैं 3a sin x minus 4b sin x. तो ये दोनों टर्म में से आप क्या निकाल सकते हो कॉमन? यू कैन टेक आउट sin x कॉमन. तो ब्रैकेट में क्या रहेगा 3a minus 4b into sin x. We have taken out sin x common. In bracket what is remaining 3a minus 4b. Next step, ये दोनों में से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं? We can take out cos x कॉमन. So in bracket क्या रहेगा 4a plus 3b, 4a plus 3b into cos x हमने क्या निकाल दिया कॉमन निकाल दिया. ओके, now if you equate both side of the equation, तो यहाँ पे देखो sin x का कोएफिशिएंट क्या है 3a minus 4b. here sin x का कोएफिशिएंट क्या है 1.
कुछ नहीं है तो क्या लिखते हैं हम, 1 है। तो यहाँ पे सो बाय हेंस वी कैन राइट 3a माइनस 4b। कोएफिशिएंट ऑफ साइन एक्स देखो क्या है यहाँ पे, 3a माइनस 4b, ऑन दिस साइड इट इज़ 1। एंड सेकेंड इक्वेशन हमारा हो गया, हमारा 4a प्लस 3b इट इज़ इक्वल टू, कॉस एक्स का देखो कोएफिशिएंट क्या है, 4a प्लस 3b इट इज़ इक्वल टू, ऑन लेफ्ट हैंड साइड कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, सॉरी कोएफिशिएंट क्या है, 2। So we got here two equations. With a and b. Okay. Now simultaneously we will solve these two equations. So multiply equation 1. Let this be 1. This as 2. So 1 को multiply कर दो 4 से. देखो यहाँ पे हम 12 लाएंगे, यहाँ पे 4 से multiply करना पड़ेगा, इसको multiply करना ही पड़ेगा 3 से. So multiply first equation by 4. So 4 3s are 12a minus 16b. It is equal to 4. Next 12a प्लस 9b इट इज़ इक्वल टू 6. सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, कैरी आउट सब्ट्रैक्शन, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस. तो 12a माइनस 12a गेट कैंसल्ड. माइनस 16 माइनस 9 कितना हो गया, माइनस 25b. 4 माइनस 6 आ गया यहाँ पे माइनस ऑफ 2. 4 माइनस 6 आ गया यहाँ पे माइनस ऑफ 2. ओके. सो आपका b का वैल्यू हो गया, b इज़ इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 25. b is equal to 2 divided by 25. Correct it is. Okay, so b is equal to 2 by 25. Now substitute this value of b in this equation. So substitute either in 1 or in 2. So substitute in 1 में put करके देखो b का value 2 divided by 25. So 3a minus 4 into b. What is b? Divided by 25 that is equal to 1. So 3a is equal to 1. ये देखो ये 1 और ये माइनस यहाँ पे चला जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस. 4 2 ज़ा 8. 8 डिवाइडेड बाय 25. सो यार a का वैल्यू देखो आपका क्या हो जाएगा. सो a इज इक्वल टू, सी 3a इज इक्वल टू 25 प्लस 8. 25 प्लस 8 कितना हो गया, 33 डिवाइडेड बाय 25. सो a इज इक्वल टू 33. ये 3 यहाँ पे डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 11 डिवाइडेड बाय 25. ए का वैल्यू हो गया आपका 11 डिवाइडेड बाय 25. सी यहाँ पे देखो क्या दिया था, राइट न्यूमरेटर एज a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b. तो हमें a और b का वैल्यू मिल गया, हमें a का भी वैल्यू मिल गया और b का भी वैल्यू मिल गया. ओके. We got both the values a as well as b. Okay. Next step, substitute at the place of numerator. तो जहाँ पे ये न्यूमरेटर है, जहाँ पे हमने इसको अज्यूम किया है न्यूमरेटर को, यहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, ये a और b का वैल्यू पुट कर देंगे. We will put here values of a and b. Okay. So here hence integral I will become, wait a minute. Hence integral I is equal to numerator. Now what is numerator? देखो numerator का वैल्यू क्या है, numerator is given sin x plus 2 cos x. लेकिन sin x plus 2 cos x को हम क्या लिख रहे हैं, we are writing sin x plus 2 cos x as a into, इसको हम चाहिए तो स्टार कर देते हैं, मैंने आगे 1 2 लिख दिया है, ये स्टार लिख दो चाहिए तो, फ्रॉम स्टार. सो इट इज़ a इंटू, वॉट इज़ a का वैल्यू देखो क्या है, 11/25. सो 11/25 इंटू 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस b का वैल्यू क्या आ गया हमारा, 2 डिवाइडेड बाई 25. राइट हियर 2 डिवाइडेड बाई 25 इंटू डेरिवेटिव जो था वो डेरिवेटिव का पूरा टर्म लिख दो, 3 cos x माइनस 4 sin x. ये हमने न्यूमरेटर को रिप्लेस कर दिया. जो न्यूमरेटर था हमारा, देखो sin x प्लस 2 cos x जो न्यूमरेटर था उसको ये टर्म से हमने रिप्लेस कर दिया. डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज़ 3 sin x प्लस 4 cos x. 3 sin x प्लस 4 cos x. इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू x. सो इट इज़ इक्वल टू, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपको, टेक आउट, स्प्लिट द न्यूमरेटर. सब्स्टिट्यूट एट द प्लेस ऑफ न्यूमरेटर. स्प्लिट द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को स्प्लिट कर दो.
तो यहाँ पे देखो ये हम a को भी बाहर निकाल सकते हैं. सो इट इज़ 11 डिवाइडेड बाई 25. इंटीग्रल के अंदर आ जाएगा 3 sin x प्लस 4 cos x डिवाइडेड बाय 3 sin x प्लस 4 cos x इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस मिडल साइन है प्लस b को भी बाहर निकाल दो 2 डिवाइडेड बाई 25. डेरिवेटिव आएगा यहाँ पे 3 cos x माइनस 4 sin ये जो सेकेंड टर्म है उसको वैसे के वैसे रिपीट कर दो. डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 sin x प्लस 4 cos x. वी हैव जो हमने न्यूमरेटर था उसको स्प्लिट कर दिया, न्यूमरेटर के दो पार्ट्स कर दिए. a को बाहर निकाल दिया, यहाँ पे b को भी बाहर निकाल दिया. अब इफ़ यू सी 11 बाई 25, 3 sin x 4 cos x गेट कैंसल. सो व्हाट इज रिमेनिंग, ये कैंसिलेशन के बाद यहाँ पे क्या रहेगा, सिर्फ 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 25, 3 cos x माइनस 4 sin x डिवाइडेड बाय 3 sin x प्लस 4 cos x. फाइंड आउट द इंटीग्रल आई. सो इट इज इक्वल टू 11 अपॉन 25. इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x प्लस 2 divided by 25. Now if you see numerator is derivative of denominator. देखो 3 इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, 3 टेकन आउटसाइड, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, 4 एज इट इज कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स. सो न्यूमरेटर इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. हमने टर्म्स ही ऐसे एडजस्ट करके लिखे हैं कि आपको हमेशा यहाँ पे ये टर्म इसका डेरिवेटिव ही मिलेगा. सो न्यूमरेटर इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर. सो व्हाट इज द इंटीग्रेशन. अगर हमारे पास ऐसा कोई सी वी हैव द फॉर्मूला एफ डैश ऑफ एक्स divided by f of x. If numerator is derivative of denominator, then it is equal to integration is log of mod of f of x plus c. Log of mod of denominator, so it is log of mod of 3 sin x plus 4 cos x plus c. This is your required answer, which is of the form a into x. तो आपके a का वैल्यू क्या था, देखो a का वैल्यू था आपका 11/25. सो 11/25 इंटू एक्स प्लस b इंटू लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b क्या था 2/25 इंटू लॉग ऑफ डिनोमिनेटर 3 sin x. जो आपका जो प्रॉब्लम है 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस c. दिस इज योर रिक्वायर्ड इंटीग्रल आई. दिस इज योर रिक्वायर्ड इंटीग्रल आई. ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम विच इज ऑल्सो ऑफ द सेम टाइप. ओके, ये देखो 3 इंटू ई रेज टू 2x, a इंटू ई रेज टू एक्स प्लस बी, सी इंटू ई रेज टू एक्स प्लस डी. यही टाइप में आ रहा है ये 3 इंटू ई रेज टू 2x प्लस 5, 4 इंटू ई रेज टू 2x माइनस 5. सो इन दिस केस ऑल्सो वी विल राइट द न्यूमरेटर एज a इंटू डिनोमिनेटर. सी क्या है फॉर्म वो, राइट द न्यूमरेटर एज a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू derivative of denominator. Okay, so we will write here let 3 into e raised to 2x plus 5 is equal to a into denominator. So it is 4 into e raised to 2x minus 5 plus b into derivative of 4 into e raised to 2x minus 5. So it is equal to a into 4 इंटू ई रेज टू 2x माइनस 5 प्लस b इंटू 4 इंटू ई रेज टू 2x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ई रेज टू 2x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x इट इज़ 2. कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो ये हो गया आपका डेरिवेटिव. इट इज़ इक्वल टू 4a इंटू ई रेज टू 2x माइनस 5a. 4 इंटू 2 8b. सो यहाँ पे आ जाएगा 8b इंटू ई रेज टू 2. देखो ये 4 इंटू 2 हो गया 8 और 8 ये b के साथ मल्टीप्लाई होकर 8b इंटू ई रेज टू 2x. 0 तो कैंसिल हो गया. सो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या है, देखो 3 इंटू ई रेज टू 2x प्लस 5. नाउ ऑन RHS व्हाट वी विल डू, वी विल टेक द टर्म्स विथ ई रेज टू 2x टुगेदर. जो भी ई रेज टू 2x के टर्म्स है उनको हम एक साथ ले लेंगे. तो यहाँ पे ब्रैकेट में क्या रहेगा 4a प्लस 8b इंटू ई रेज टू 2x टेकन कॉमन माइनस 5a. लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या है 3 इंटू ई रेज टू 2x प्लस 5. नाउ हेंस इफ यू इक्वेट बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ ई रेज टू 2x हियर 4a प्लस 8b.
4a प्लस 8b इट इज़ इक्वल टू 3। दोनों साइड के e रेस टू 2x के हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट इक्वेट करेंगे। सो 4a प्लस 8b का वैल्यू हो गया 3 एंड minus of 5a, see what is the remaining term, minus of 5a is equal to 5, minus of 5a is equal to 5, hence a is equal to 5 divided by minus 5, so a का वैल्यू हो गया आपका माइनस ऑफ 1, a का वैल्यू हो गया आपका माइनस ऑफ 1। ओके, जहाँ पे हमने इसको अज्यूम किया है, जहाँ पे डेरिवेटिव हमने निकाला है, वी विल टेक दैट इक्वेशन एज 1। नेक्स्ट ये जो a इज इक्वल टू माइनस 1 है, लेट दिस इक्वेशन बी 2 4a प्लस 8b का, और इसको दे दो 3। सो सब्सटीट्यूट a इज इक्वल टू, सब्सटीट्यूट इन 2, सब्सटीट्यूट दिस a इज इक्वल टू माइनस 1 इन इक्वेशन नंबर 2। सो 4a का वैल्यू क्या है माइनस 1 प्लस 8b इट इज इक्वल टू 3। सो माइनस 4 प्लस 8b इट इज इक्वल टू 3। 8b इज इक्वल टू 3 प्लस 4, 3 प्लस 4, सो b का वैल्यू हो गया 3 प्लस 4 कितना हो गया 7 डिवाइडेड बाय 8, b का वैल्यू हो गया 7 डिवाइडेड बाय 8। ओके, सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ a एंड b। ओके, सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट इज गिवन, कि यहाँ पे आपको दिया क्या है, उन्होंने क्या बोला है, ये तो आगे आपको a और b के वैल्यूज। वी विल राइट द न्यूमरेटर एज a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर विद द वैल्यूज ऑफ a एंड b। सो हेंस इंटीग्रल i विल बिकम, इंटीग्रल i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 इंटू ई रेस टू 2x प्लस 5 को हम लिखेंगे a का वैल्यू क्या निकाला है हमने माइनस 1, सो इट इज़ माइनस 1 इंटू 4 इंटू ई रेस टू 2x माइनस 5 प्लस b का वैल्यू क्या है 7/8, 7/8 इंटू 4 टू ज़ा 8, 8 इंटू ई रेस टू 2x। ओके, यहाँ पे देखो 1 में हमने पुट कर दिया, सो फ्रॉम 1, हेंस इक्वेशन 1 बिकम्स, यहाँ पे हम एंड में लिख देंगे, हेंस इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 जो है वो a और b के वैल्यूज़ के साथ हमने रिप्लेस कर दिया। इक्वेशन 1 जो है वो a और b के वैल्यूज़ के साथ हमने रिप्लेस कर दिया। सो a का वैल्यू हो गया -1, b का वैल्यू हो गया 7/8 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर एज इट इज़ 4 इंटू ई रेस टू 2x माइनस ऑफ 5। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज स्प्लिट द न्यूमरेटर, टेक आउट दिस -1 आउटसाइड ऑफ द इंटीग्रेशन, 4 इंटू ई रेस टू 2x माइनस ऑफ 5, 4 इंटू ई रेस टू 2x माइनस ऑफ 5, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x, प्लस 7/8, ये b का भी वैल्यू बाहर निकाल दो, यहाँ पे आ जाएगा 8 इंटू ई रेस टू 2x डिवाइडेड बाय 4 इंटू ई रेस टू 2x माइनस ऑफ 5। नाउ इफ़ यू सी यहाँ पे तो ये दोनों टर्म तो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ 1 इंटू 1 dx प्लस 7/8, 8 इंटू ई रेस टू 2x, 4 इंटू ई रेस टू 2x माइनस ऑफ 5। और अगर आप यहाँ पे सेकेंड इंटीग्रल देखोगे, 4 इंटू ई रेस टू 2x का इंटीग्रेशन क्या है 4 एज इट इज़, ई रेस टू 2x का इंटीग्रेशन ई रेस टू 2x इंटू 2, तो 2 4 ज़ा 8 इंटू ई रेस टू 2x, तो ये जो डिनोमिनेटर है इसका ये डेरिवेटिव है, न्यूमरेटर क्या हो गया डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। सो इंटीग्रल आया, जब आप इवेल्युएट करोगे तो -1 इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज़ x प्लस 7/8 इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ डिनोमिनेटर 4 इंटू e raised to 2x minus of 5 plus c. This is the value of required integral I. This is the value of required integral I, which is of the type a into x plus b into log of denominator, a into x plus b into log of denominator plus c. Okay, now we will see the next problem. So next problem is integral I is equal to sin raised to 5x into cos raised to 8x, sin raised to 5x into cos raised to 8x. So here we can write, I'm starting with the solution, integral I is equal to sin raised to 5 into cos of 8 raised to x into dx. तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये जो साइन है इसको अगर हम cos के टर्म्स में लिखते हैं
सी कॉस रेस टू एट एक्स है, तो इसको तो अगर हमने स्प्लिट कर दिया तो कॉस रेस टू 7 इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। तो कॉस रेस टू 7 को आपको साइन में लिखना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो अगर हम ये साइन रेस टू 5 को सपोज ये देखो कॉस रेस टू एट एक्स एज इट इज, साइन रेस टू 5 एक्स को अगर आप ऐसे लिखते हो साइन रेस टू 4 एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, ओके। एंड फॉर दिस साइन रेस टू 4 एक्स वी कैन राइट ये एट एक्स एज इट इज, साइन रेस टू 4 एक्स को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इंटू साइन एक्स डी एक्स, स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 4। एंड वी हैव द आइडेंटिटी, कौन सा आइडेंटिटी है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट स्क्वायर इंटू साइन एक्स। Now, if you see the integral I, we can put here cos x is equal to t. And what is the derivative of cos x? Minus sin x into dx. So we can use here, इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, substitution method use कर सकते हैं. So put cos x is equal to t. Derivative of cos x is minus of sin x into dx is equal to dt. So we require here value of sin x into dx. तो साइन एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा फिर, माइनस ऑफ डी टी। ये माइनस साइन यहाँ पे चला जाएगा, सो साइन एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा माइनस ऑफ डी टी। मीन्स इंटीग्रल आई विल बिकम कॉस रेस टू एट, तो हमने कॉस एक्स को तो टी पुट कर दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा टी रेस टू एट माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर ब्रैकेट रेस टू 2। कॉस एक्स की जगह पे टी पुट कर दिया, तो यहाँ पे टी रेस टू एट 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स माइनस ऑफ डी टी। नाउ वी विल स्क्वायर दिस ब्रैकेट, सो टी रेस टू एट एज इट इज 1 माइनस ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला, सो इट इज माइनस 2t स्क्वायर, और टी स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, टी रेस टू 4 इंटू माइनस ऑफ डी टी। सो इट इज़ इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दो ये अंदर, टी रेस टू 8 माइनस 2 इंटू टी रेस टू 8 इंटू टी स्क्वायर टी रेस टू 10 प्लस टी रेस टू 12 minus of dt. Take out this minus sign outside of the integration. Take out this minus sign outside of the integration. t raised to 8 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा फिर, x raised to n का फॉर्मूला t raised to 9 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 2 इंटू t raised to 11 डिवाइडेड बाई 11 प्लस t raised to 13 divided by 13 plus c. So it is equal to minus of t raised to 9. What is t? Cos x. So the answer is minus of cos x raised to 9 divided by 9. Minus of minus plus 2 by 11 into cos x raised to 11 minus cos x raised to 13 divided by 13 plus c. So जहाँ जहाँ पे t था हमने वहाँ पे cos x का वैल्यू पुट कर दिया. We have written over there cos x. तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, ये हो गया आपका फाइनल आंसर. ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम फ्रॉम दिस एक्सरसाइज. 3.2a का जो कंटिन्यूशन चल रहा है उसी में है ये. सो वी विल सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज इंटीग्रल i इज इक्वल टू cos raised to 7x. We have to find the integral I is equal to cos raised to 7x. Now how we can write this? See, cos raised to 6x into cos x. Cos raised to 6x into cos x. For this cos raised to 6x, what we can write? Cos square x bracket cube into cos x dx. Square raised to 3. 2 into 3 कितना हो जाता है? 6 हो जाता है. Index raised to index. अगेन वी विल यूज़ हियर आइडेंटिटी. तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी कौन सा आ जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स. सी वी हैव यूज, पहले वाले प्रॉब्लम में भी हमने यही आइडेंटिटी यूज़ किया था. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट रेज टू 3 इंटू कॉस एक्स डी एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स. नाउ हियर यू कैन पुट, इसके आगे आप सब्सटीट्यूशन मेथड अप्लाई कर सकते हो. सो पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी. पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी. तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो गया? कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. हेंस कॉस एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू हो गया, कॉस एक्स इंटू डी एक्स का वैल्यू हो गया डी टी. सो इंटीग्रल आई विल बिकम 1 माइनस टी स्क्वायर ब्रैकेट रेज टू 3 इंटू डी टी. 1 माइनस टी स्क्वायर ब्रैकेट रेज टू 3 इंटू डी टी. सो इट इज़ इक्वल टू 1 माइनस
1 minus t square bracket cube. So a minus b bracket cube. We will use the formula a minus b bracket cube. A cube minus 3a square b plus 3ab square minus b cube. So a cube 1 minus 3a into a square into b. So it is 3t square plus 3t raised to 4 माइनस टी क्यूब. तो टी स्क्वायर का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, तो टी रेज टू 6 डी टी. वी विल फाइंड द इंटीग्रल. इंटीग्रेट, इसको इंटीग्रेशन निकाल दो. तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू टी, टी. 3 टेकन आउटसाइड, इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वायर एक्स रेज टू एन प्लस 1. सो 2 + 1 हो जाएगा टी क्यूब डिवाइडेड बाई 3. सी टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3 इंटू टी रेज टू 4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी रेज टू 5 डिवाइडेड बाई 5 माइनस टी रेज टू 6 का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी रेज टू 7 डिवाइडेड बाई 7 प्लस सी. नाउ वी विल पुट द वैल्यू ऑफ टी. एंड व्हाट इज टी? टी इज इक्वल टू साइन एक्स. सो राइट हियर साइन एक्स माइनस here 3 get cancelled, साइन क्यूब एक्स 3/5 scalar taken outside, t raised to 5. So sin raised to 5x 1/7 into sin raised to 7x plus c. This is your required final answer. This is your required final answer. Okay. So ये आपका यहाँ पे हो गया 3.2 A कंप्लीट. जो सब इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स है वो सब हमने यहाँ पे कवर कर दिए. थैंक यू.